Good morning, dear students. As you are aware, we were discussing the concept soil as a resource. We were discussing the concept of the different types of soil that is found in India. I told you that there are 6 types of the soil that is found in India. These are our alluvial soil, black soil, red and yellow soils, laterite soil, arid soils, and forest soils. So these are the 6 types of these soils that are found in India. We have already discussed about the alluvial soil. So today we are going to discuss about the other soils. The very first soil is the black soil. So the black soil mostly found in the Deccan Plateau. Okay, this area of the Gujarat, Maharashtra, and these areas. In these area, our black soil is found. Black soil. These soil are black in color, as its name indicates. These are black in color, and it is also known as the rugged soil. Black soil is ideal for growing cotton, and that's why it is also known as the black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factors for the formation of black soil. Means हमारी जो black soil है, it mostly consists of the parent rock, or you can say that the igneous rock. This type of soil is typical of Deccan Trap basalt region. यानी कि जो ये region है, this is the region of the basalt. Basalt is a mineral that is the part of the igneous rock. यानी कि जो आपका मैग्मा होता है, जो लावा होता है, उससे जो है आपका जो है ये पार्ट जो है आपका बना है. स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट दक्कन ट्रैप प्लेट्यू, ये आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर आपका जो है फैला हुआ है. एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, और ये लावा का बना है, आपका मैग्मा का आपका बना है. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ direction and the east direction along with the Godavari and Krishna valleys. So in these regions mostly our black soil is found. Now characteristics of black soil. The very first is the black soil are made up of extremely fine, that is clay material. यानी कि बहुत ही आपका जो है fine clay material की बनी है. They are well known for their capacity to hold moisture. ये जो सोइल है आपकी, इसकी जो बेस्ट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, मॉइस्चर को होल्ड रखने की होती है. तो ये होल्ड मॉइस्चर कैपेसिटी के नाम से भी जानी जाती है. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम. यानी कि ये जो सोइल होती है इसमें ये आपके न्यूट्रिएंट होते हैं. कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड द लाइम. लेकिन इसकी जो ड्रॉबैक होती है, इट हैज द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फेरिक कंटेंट. इसमें जो है फॉस्फेरिक कंटेंट की जो है लैक जो है वो होता है, कमी जो है होती है. दे डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सोइल. जब आपका हॉट वेदर होता है तो ब्लैक सोइल में आपकी जो है दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें जो है प्रॉपर एयरेशन हो जाता है. यानी कि प्रॉपर एयर का जो आपका जो पासिस है वो एयर पास जो है प्रॉपर इसमें से उन क्रैक से हो जाती है. यानी कि प्रॉपर मात्रा में इसको एयर मिल जाती है. These soil are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately. लेकिन जब ये गीली होती है, यानी कि इसमें इरिगेशन आ जाता है आपका, हम इसमें जो है सिंचाई इसकी कर देते हैं, तो उस टाइम जो है ये आपकी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है. और जब तक हम इसको टिल्ड फ्लो नहीं करते, हम इसको जो है जोतते नहीं हैं, तो उस समय तक इसमें जो है कार्य नहीं किया जा सकता. आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड, यानी कि शावर के टाइम, प्री मॉनसून टाइम, रेनफॉल के टाइम या इरिगेशन के टाइम ये आपकी स्टिकी हो जाती है. सो दिस इज द ब्लैक सॉइल. नेक्स्ट इज अवर रेड एंड येलो सॉइल.
हैव ए लुक हियर, these part are the red and yellow soil part. Are you looking on the map? On the map, these parts are the parts of the red and yellow soil. Mostly red and yellow soil it found in the Deccan Plateau region in the eastern directions and the south directions. So red soil develops on crystalline igneous rock in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. यानी कि जो आपकी red soil है ये crystalline igneous rock. In the 7th standard I told you about the different types of igneous rock. There are two types of the igneous rock. The very first is intrusive igneous rock and second is our extrusive igneous rock. जो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, यानी कि इसमें जो फाइन मटेरियल आपका होता है, चमकदार होता है, क्रिस्टल होता है। तो जहां पे आपकी लो रेनफॉल के रीजन है ईस्टर्न पार्ट्स में और सदर्न पार्ट में, वहां पे ये सोइल आपकी पाई जाती है। येलो and red soil are found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the middle Ganga plain and the along the Piedmont zone of Western Ghat. कहाँ पे पाई जाती है आपका? ये ओडिशा का जो रीजन है यहाँ पे ये आपकी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ का जो रीजन है यहाँ पे आपकी पाई जाती है, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल हियर, यहाँ पे जो ये सदर्न पार्ट्स है यहाँ पे आपकी ये सोइल पाई जाती है, ये गंगा का जो आपका सदर्न पार्ट्स है यहाँ पे आपकी ये सोइल पाई जाती है, इस एरियाज में आपकी ये सोइल पाई जाती है। और यहाँ पे पीडमोंट जोन यानी कि फुटहिल्स जब आपकी स्टार्ट होती है तो उसको पीडमोंट जोन के नाम से जानते हैं, यानी कि पहाड़ों का एरिया जब आपका स्टार्ट होता है तो वहां पे जो सोइल होती है, जो एरिया होता है उसको पीडमोंट जोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी आपका जो वेस्टर्न घाट के पीडमोंट जोन है यहाँ पे भी आपकी रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। This soil develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. Igneous और metamorphic rock में जब आपका आयरन का डिफ्यूजन होता है तो उसकी वजह से इसका रंग जो है रेड हो जाता है। It look yellow when it occurs in hydrated form. और जब इसमें इरिगेशन किया जाता है या मॉइस्चर जब इसमें आ जाता है तो इसका जो कलर है वो आपका जो है येलो कलर हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इसका जो है रेड कलर होता है और हाइड्रेशन की वजह से इसका जो है येलो कलर हो जाता है। नेक्स्ट टाइप इज आवर लेटराइट सोइल। आवर लेटराइट सोइल, लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक्स, यानी कि ये लैटिन वर्ड से आपका लिया गया है लेटर से जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स, यानी कि ईंटों की तरह। ब्रिक्स देखी होगी आपने, ईंटें देखी होगी, ये जो है ईंटों की तरह आपकी होती है। द लेटराइट सोइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये उन्हीं एरिया में, हैव लुक ऑन दिस मैप, दिस एरिया हैज कम इन द ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर आपका होता है और ये वेस्टर्न घाट्स में है तो यहाँ पे आपकी ज्यादातर रेनफॉल भी होती है। सो जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां पे आपकी लेटराइट सोइल पाई जाती है। आपने देखा होगा कि लेटराइट सोइल इन एरियाज में आपकी पाई जा रही है जहां पे आपकी ज्यादा रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर आपका होता है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब हैवी रेन होती है तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाश डाउन हो जाती हैं, यानी कि इसमें से निकलकर चले जाते हैं, बह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस की वजह से इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाश डाउन हो जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं। Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposer like bacteria, get destroyed due to high temperature. इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि डिकम्पोजर्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं। लेटराइट soils are suitable cultivation with adequate doses of manures and fertilizer. केवल इसको जो हम खेती लायक बना सकते हैं वो तभी बना सकते हैं जब इसमें हम एक प्रॉपर अमाउंट में मैन्यूर का प्रयोग करें और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। These soil are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly area of Odisha and Assam. यानी कि ये असम के हिली एरियाज में आपकी पाई जाती है। ये आपकी जो है
कर्नाटका रीजन में आपकी पाई जाती है, आपकी केरला रीजन में पाई जाती है, तमिलनाडु रीजन में आपकी पाई जाती है, और आपकी जो है ओडिशा के कुछ पार्ट्स में आपकी पाई जाती है। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. यानी कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में प्रॉपर अगर हम कंजर्वेशन टेक्निक का प्रयोग करें तो यहाँ पे जो है इस सोइल में टी और कॉफी को ग्रो किया जाता है। ऐसे ही जो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका केरला का जो रीजन है, यहाँ पे जो है आपका जो है इस सोइल में कैस्यू कल्टीवेशन भी की जाती है, आपकी जो है काजू की खेती भी जो है यहाँ पे की जाती है। सो दिस इज अवर लेटराइट सोइल। नेक्स्ट इज अवर एरिड सोइल। एज इट नेम इंडिकेट, it is found in the arid region. Have a look on this western Rajasthan region. Here mostly found the arid soil. So arid soil range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. जो आपकी एरिड सोइल होती है ये रेड कलर से लेकर ब्राउन कलर तक होती है, यानी कि लाल रंग से लेकर भूरे कलर तक की होती है। इस प्रकार की सोइल जो होती है उसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी टेक्सचर होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे। इस सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं। और ये जो सोइल होती है सैलिन इन नेचर, यानी कि इसमें लवणता होती है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे सोइल का जो कंटेंट है वो इस मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। और जब यहाँ से वाटर इवेपोरेशन होता है, जल का वाष्पीकरण यहाँ से होता है, तो इस सोइल से जो है जो हम कॉमन सॉल्ट यानी कि खाने का जो नमक है वो भी हम इससे प्राप्त करते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. जैसा कि ये ड्राई क्लाइमेटिक रीजन में आपकी पाई जाती है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर आपका होता है, इवेपोरेशन भी बहुत तेज गति से होता है, तो इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। द लोअर horizons of the soil are occupied by कंकड़ because of increasing calcium content downwards. इस तरह की जो सोइल आपकी होती है इसमें क्या होता है आपका कंकड़ नोड्यूल्स आपके पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे तो कंकड़ नोड्यूल्स आपके पाए जाएंगे। वो किसकी वजह से पाए जाते हैं आपके, क्योंकि इस प्रकार की जो सोइल है उसमें कैल्शियम की का अमाउंट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होगा, और जब कैल्शियम का अमाउंट आपका बढ़ता जाता है तो उसमें कंकड़ की मात्रा बढ़ती जाती है। The concord layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. तो जब आपके कंकड़ नीचे आ जाते हैं तो जमीन के अंदर जो है वाटर का इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है, यानी कि पानी का जो रिसाव है वो जमीन के अंदर तक नहीं जा पाता है। After proper irrigation, these soil become cultivable as has been in the case of Western Rajasthan. हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज को अडॉप्ट करके जो है इस प्रकार की मिट्टी में खेती कर सकते हैं, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में आपकी की जाती है। आपने देखा होगा कि वेस्टर्न राजस्थान में जो है जैसे भी आपकी जो इरिगेशन जो मेथड है वो फाउंटेशन मेथड का अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि फवारा टेक्निक को यूज किया जाता है। फवारा टेक्निक के द्वारा जो है वो सोइल को इरिगेट करते हैं। एंड आवर लास्ट सोइल इज द फॉरेस्ट सोइल। हैव अ लुक हियर, these hilly area, these are the forest soil regions. These soil are found in the hilly and the mountainous areas where sufficient rainforest are available. यानी कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम and some parts of the Arunachal Pradesh, they consist of the forest types of soil. Mostly this type of the soil is found in the hilly area. The soil texture varies according to mountain environment where they are formed. जो सोइल का टेक्सचर यहाँ पे होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ये डिपेंड करता है माउंटेन एनवायरनमेंट पे, क्योंकि माउंटेन में आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे आपके ग्लेशियर रीजन भी है, यहाँ का एल्टीट्यूड भी ज्यादा है, यहाँ पे आपका अलग से रीजन क्लाइमेटिक रीजन मिलता है।
तो इसलिए जो सोइल का जो आपका टेक्सचर है वो अलग अलग पाया जाएगा। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, जहां पे आपकी वैली साइड होगी, जहां पे आपकी रिवर्स होगी यानी कि घाटियां जहां पे आपकी होंगी, वहां पे जो सोइल होती है वो लोमी सोइल पाई जाएगी, चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। एंड कोरस ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप, लेकिन जब आप अपर स्लोप में जाएंगे, यहाँ पे जो सोइल होती है वो जो है कोयस ग्रेन में पाई जाएगी, यानी कि मोटे मोटे टुकड़ों में पाई जाती है, मोटे पार्टिकल्स में पाई जाती है। इन दी स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, जो हिमालय का ये स्नो कवर्ड एरियाज है, यहाँ पे क्या होता है, द सोइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, सोइल यहाँ पे डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन मीन्स द रिमूविंग ऑफ अपर लेयर ऑफ सोइल, जब सोइल की अपर लेयर रिमूव हो जाती है, तो दैट इज नोन एज द डेन्यूडेशन। तो ग्लेशियर की वजह से आपकी जो अपर सोइल है वो आपकी कई बार रिमूव हो जाती है, तो जहां पे आपकी सोइल जो है डेन्यूडेशन को एक्सपीरियंस करती है। एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, तो यहाँ पे जो आपकी जो सोइल है वो एसिडिक फॉर्म में पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कम जो है आपका ह्यूमस कंटेंट होगा। The soil found in the lower part of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. इसके अतिरिक्त जो सोइल आपकी निचले हिस्सों में पाई जाएगी, जहां पे आपकी नदियां बहती हैं, यहाँ पे जो आपकी सोइल जो होगी वो आपकी जो है फाइन टाइप की सोइल होगी और फर्टाइल सोइल आपकी पाई जाएगी। So these are the different types of the soil that has been found in India. So in India, mainly there are 6 types of the soil that has been found. These are our alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, and the forest soil. Next concept is the most important concept. You can also note down this concept in your notebooks. This is our soil erosion. What do you mean by soil erosion? Soil erosion is the most important concept. Soil erosion. So in simple language, we can say that soil erosion is the removal of soil by the forces of nature like wind and water is called soil erosion. Means जब natural agent wind और water के द्वारा आपकी जो soil है वो remove कर दी जाती है, so that is known as soil erosion. और अगर हम technical point of view से देखें, this can also be described as denudation. Denudation means removing of the upper layer of soil or surface soil. जब आपकी surface soil remove हो जाती है, that is known as denudation. So as denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जब आपका soil cover denudate हो जाता है, remove हो जाता है और subsequently और continuous वो आपका वॉश डाउन होता रहता है बाय द डिफरेंट एजेंट ऑफ द नेचर लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर, सो दैट इज नोन एज सोइल इरोजन। उसको हम जो है सोइल इरोजन के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोइल इरोजन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो सोइल इरोजन है इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। द वेरी फर्स्ट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स this is when the top soil is actually detached from the rest of the ground, यानी कि जब सोइल आपकी रेस्ट ऑफ द ग्राउंड से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, जुदा हो जाती है उससे, सो दैट इज नोन एज द डिटैचमेंट। यानी कि जब अपर लोअर ऑफ सोइल वहां से रिमूव हो रही है, वो इरोजन उसका हो रहा है, इरोडेड वो हो रही है, सो दैट इज नोन एज द डिटैचमेंट। सेकंड इज अवर मूवमेंट। वो सोइल जो वहां से आपकी इरोड हुई है, क्या होगा, when the topsoil is relocated into another area, तो डिफरेंट जो नेचुरल एजेंट है जैसे कि विंड, वाटर और ग्लेशियर है, वो उसको वहां से इरोड करके ले जाएंगे और दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देंगे, यानी कि उसको दूसरी जगह पर ले जाते हैं। सो दैट इज नोन एज द मूवमेंट। जैसे कि विंड चली, विंड ने सॉइल पार्टिकल को अपने साथ उड़ाकर ले गई, तो जो उड़ा के ले जा रही है, जो प्रोसेस चल रही है, दैट इज द मूवमेंट। वाटर अपने साथ मिट्टी को काट कर ले जा रहा है, इरोड करके ले जा रहा है, सो दैट इज द मूवमेंट। एंड थर्ड इज डिपोजिशन।
यानी कि वहां पे वो इसको डिपॉजिट कर देती है। वेयर द टॉप सॉइल एंड्स अप आफ्टर दिस प्रोसेस, यानी कि वो सॉइल जो आपकी इरोड करके एक जगह पे ले जाई गई है, उसको दोबारा जब रिलोकेट किया जाता है तो वहां पे वो सेट हो जाती है, वहां पे वो कवर हो जाती है। तो दैट इज नोन एज द डिपोजिशन, कि वहां पे दोबारा से उसने अपनी पोजीशन ले ली है, वो दोबारा से वहां पे डिपॉजिट हो गई है। सो दीज आर द 3 प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन के जो हैं 3 प्रोसेस आपके चलती है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ soil erosion. Actually there are 2 types of the soil erosion. The very first is water erosion and second is our wind erosion. First of all, we will discuss about the water erosion. When running water is responsible for the removal topmost layer of the earth, that is known as water erosion. जब आपका रनिंग वाटर जो है अर्थ आपकी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को रिमूव कर देता है, सो दैट इज नोन एज वाटर इरोजन। एंड आवर वाटर इरोजन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 2 कैटेगरीज। ये आपकी 2 कैटेगरी में और आपका जो है डिवाइड किया जाता है। द वेरी फर्स्ट इज द seat erosion. Seat erosion, as its name indicate, when the top layer of soil is removed over a large area by running water, it is called as seat erosion. जब रनिंग वाटर के द्वारा आपकी सॉइल की टॉप लेयर रिमूव कर दी जाती है, सो दैट इज नोन एज द सीट इरोजन। जब बहुत तेज गति से आपका पानी बह रहा है तो उससे आपकी सॉइल की एक लेयर जो है रिमूव हो जाती है, so that is known as the seat erosion. Seat erosion का एक एग्जांपल मैंने अभी फॉरेस्ट सॉइल में भी आपको दिया था, denudation of the top soil by the glacier. ग्लेशियर की वजह से जब आपकी टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, so that is also known as the seat erosion, यानी कि पूरी की पूरी जब अपर लेयर जो है वो आपकी रिमूव हो जाती है, so that is known as the seat erosion. Next is our gully erosion. In the gully erosion, the running water cut through the clay soil and makes deep channels as gullies. यानी कि जब रनिंग वाटर क्या करता है, it make the deep channel in the soil. जब ये सॉइल में डीप चैनल बना देता है, डीप क्रैक्स बना देता है, so that erosion is known as the gully erosion. Have a look on these pictures. In this picture, you will find that here the running water make the deep channels here. So these deep channels are known as the gully. So this is known as the gully erosion. Such types of the land become unfit for cultivation. इस तरह की जो लैंड है वो खेती के लिए जो है उपयुक्त नहीं रहती है, इनअप्रोप्रिएट हो जाती है, एंड इज नोन एज बैड लैंड। और इस तरह की लैंड को हम बैड लैंड के नाम से भी जानते हैं। इन द चंबल बेसिन, अगर हम चंबल बेसिन का एग्जांपल ले, दैट इज सिचुएटेड दैट लाइज इन द मध्य प्रदेश रीजन। तो चंबल जो बेसिन आपका चंबल रिवर के आसपास का जो एरिया है, वहां पे ज्यादातर आपका जो है इस तरह का गली इरोजन ही होता है, यानी कि वहां पे डीप चैनल्स आपके पड़ जाते हैं। सो सच बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेविन्स देयर। वहां पे इस तरह की लैंड को, यानी कि वहां पे गली इरोजन को रेविन्स के नाम से जो है जाना जाता है। सो वाटर इरोजन इज ऑफ द 2 टाइप्स। द वेरी फर्स्ट इज अवर सीट इरोजन एंड सेकंड इज अवर gully erosion. Seat erosion when the top layer of the soil removed by over a large area by running water, it is known as the seat erosion. And gully erosion when the running water cut through the clay soil and make deep channel, that is known as the gully erosion. Next is our wind erosion. Second type of the erosion is the wind erosion, also known as the deflation. Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. जब आपकी विंड सॉइल के लूज पार्टिकल्स को ब्लो अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, कहां से, फ्लैट एरिया से या स्लोपिंग लैंड या स्लोपिंग एरिया से, सो सच टाइप्स ऑफ द इरोजन इज नोन एज द विंड इरोजन। उस तरह के इरोजन को हम जो है
विंड इरोजन के नाम से जानते हैं। विंड इज पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो विंड इरोजन आपका कौन से एरिया में होता है? जो एरिया आपके एरिड यानी कि जहां पे बहुत आपकी रेनफॉल नहीं होती है, एरिड रीजन आपके होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान का रीजन आपका है, एंड सेमी एरिड रीजन, या जहां पे आपकी रेनफॉल तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे कि राजस्थान रीजन है, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, गुजरात, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो है आपका जो है विंड इरोजन आपका होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द विंड इरोजन, water erosion, sorry, two types of the soil erosion, that is the water erosion and the wind erosion. Water erosion further divided into the two category, sheet erosion and the gully erosion. Now causes of the soil erosion, कि ये जो erosion आपके हो रहे हैं, what are the factors behind it, what are the causes of the soil erosion? Actually there are only two causes of soil erosion. These are the natural causes and the man-made causes. दो तरह के ही आपके जो हैं soil erosion के causes होते हैं. Please note down this: natural causes and the human activity causes or man-made causes. First of all, we are going to discuss about the natural causes. Our natural causes, the causes that has been created by the nature, like the wind, glacier, running water, landslide, floods, torrential rainfall. These are the nature-made causes. In the human activity, there are the 6 types of the main causes. These are our deforestation, overgrazing, construction, mining, faulty methods of agriculture, malpractices and land utilization. So these are the 6 man-made causes. First of all, we are going to discuss about the natural causes. The very first is the wind. I told you about the wind erosion, how the wind cause the soil erosion. Wind blows loose soil off flat or sloping land, that is known as the wind erosion. यानी कि wind क्या करती है, soil के जो loose particles होते हैं उनको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है. तो such types of the erosion is wind erosion. Second is our glacier. As I told you, in the forest soil, when the glacier denudate the soil layer or the topmost soil surface, that is known as glacier erosion. यानी कि ग्लेशियर की इरोजन की वजह से जब ग्लेशियर आपके जो है अपनी जगह से स्लाइड होते हैं, खिसक जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ सोइल जो होती है वो भी उसके साथ बह जाती है. So that is known as the glacier erosion, and sheet erosion is the example of the glacier erosion also. Next is our running water. रनिंग वाटर की वजह से आपके दो तरह के इरोजन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था. द वन इज सीट इरोजन एंड सेकंड इज गली इरोजन. यानी कि जब आपका व्हेन द रनिंग वाटर washed away the topmost soil surface, that is the seat erosion, and when the running water makes the deep channel, deep cracks in the soil, that is the gully erosion. Fourth is our landslide. As you are aware, our different physical feature consist of the rocks. So Himalayan mountain is also consist of the different types of the rock. So if we have a look on the formation of the Himalayan mountain that we have already discussed in the 9th standard, in the northeastern parts of the Himalayas mostly consist of the sedimentary rock, means the area that lies in the Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, like this. So these consist of the sedimentary rock. These are the unconsolidated material, and you are well aware that in these area mostly rainfall occur. So due to that there is the landslide occur. So landslide is also one major cause of the soil erosion in the hilly region. Next is our floods.
मोस्टली फ्लड्स कहाँ पे आती है आपकी? इन दी रिवर बेसिन्स, इन दी रिवर वैलीज. सो द एरिया ऑफ द गंगा, यमुना, our Brahmaputra region, Damodar river valley region, so these area are the flood prone areas. So due to the flood, the topsoil of the earth, it has been removed by the fast velocity of the water. So flood is also one major reason of the soil erosion. But that soil also deposit at the another places, it relocated at the another places. So due to the flood, a new layer also formed. So simultaneously, erosion and deposition of the soil occur in the flood. And last is our torrential rainfall. When there is the torrential rainfall, यानी कि जब आपकी बहुत तेज बारिश आपकी होती है, so that in that cases the upper surface of the soil has been washed down due to the torrential rainfall. So that the torrential rainfall is also the cause of the soil erosion. So these are the different types of the natural causes that are responsible for the soil erosion. Now, if you have any doubt, any question in your mind regarding today's lecture, you can tell me. I will sort out your problems. You can raise hand. Thank you, beta. Have a nice day. Stay healthy. Stay safe, beta. We will discuss the further concept in the next lecture. Thank you, beta. God bless you. God bless you.